Okay, students, here I am again with you, and today we're gonna talk about a very important topic. You can say the fundamentals and what we're gonna talk next. और आज के टॉपिक में we're gonna talk about chemical bonding. Chemical bonding is something like a force of attraction between atoms, as I told you in my previous lectures. And today the head of this topic will be types of bonding. और types of bonding में we're gonna talk about ionic bond, covalent bond, right? And covalent bond में we're gonna talk about polar and non-polar covalent bonds, and in coordinate covalent bond is going to be another topic we're gonna discuss. So let's start with it. Let's talk about ionic bond first. So as you have noticed in your previous classes, especially in class 9, I really wish you know something about ionic bond. This all kind of bonding was explained by a one genius known as Lewis. He is an incredible scientist. He also gave an idea about all these kind of bonding. We're gonna tell you, no, and he also gave an idea about acids, and bases. He also let you know about all these kind of stuff, So let's begin with this guy. In 1923, he just tried to give his ideas. Lewis explained almost about all kind of bonding. और स्पेशली ये इसने जो बॉन्डिंग एक्सप्लेन की है ये स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स को लेकर है. तो दैट इज़ द फोकसिंग पॉइंट इन माई टुडेज लेक्चर कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं दो एटम्स को इकट्ठा रखने में. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि देयर आर जनरली टू मेथड्स, राइट? जनरली टू मेथड्स बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स. एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे किसी दूसरे एटम को, और लेट्स से दैट कि जो ए है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और बी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाए. और दूसरा मेथड जो है दैट इज समथिंग लाइक म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू जस्ट कॉल इट इन उर्दू बाहमी इश्तराक. So just a word for you. And in this, the two things, the A and B, are sharing electrons, right? These are the electrons which is being shared. So let me just make it cross. And these shared electrons are known as bonded electrons, or you can say it as a bond pair, or you can say as a shared pair of electrons. Shared pair of electrons, or I don't know, gonna take it a lot of more names, So these are the major words जो मैंने आपको अभी बताए हैं. तो there are two methods जिससे atoms bonding कर सकते हैं. The first method is by transferring of electrons, and the other method is by the sharing of electrons, the mutual sharing. Mutual का लफ्ज़ इसलिए होता है क्योंकि दोनों ने शेयर करना होता है, दोनों ने एटम्स ने पार्टिसिपेट करना होता है. जब दो पार्टीज होती हैं और उनमें कोई कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है या समथिंग इज हैपनिंग बिटवीन टू थिंग्स, तो फिर म्यूचुअल का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ द साइंटिस्ट यूज दिस वर्ड, म्यूचुअल शेयरिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. लेट्स टॉक अबाउट आयोनिक बॉन्डिंग. In ionic bonding, basically what happens, if you just look at periodic table, so let me draw this small pretty good periodic table for you. Look at that. So that's the periodic table, right? And that's the two section of the periodic tables. Basically it is having a four sections: the S block, the D block, the P block, and the F block, right? These are the four sections of this periodic table. ब्लॉक की शक्ल में हम इनको समझते जानते हैं. तो देखा ये जाता है कि जो periodic table की लेफ़्ट साइड है उसमें मेटल्स हैं और जो राइट साइड है उसमें जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं. तो आयनिक बॉन्डिंग के लिए ये बड़ा सुपीरियर होता है कि जो अच्छे मेटल्स हैं, जैसे ये पहला ग्रुप है which is called as alkali group,
ये जो लास्ट में तो नोबल गैसेस होती हैं, ये जो लास्ट से पहले ग्रुप आता है जो 17th ग्रुप विच इज नोन एज द हैलोजन फैमिली, ये आपस में आयनिक बॉन्ड बड़ा अच्छा बनाते हैं। द क्वेश्चन राइजेस ओवर हियर कि ये अच्छा आयनिक बॉन्ड कैसे बनाते हैं। द रीज़न इज़ दैट कि ये प्रोडक्ट टेबल के सबसे बड़े एटम्स हैं, राइट। एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर के जो एटॉमिक रेडियस होता है वो प्रोडक्ट टेबल की लेफ्ट साइड में एटम्स के साइज बड़े होते हैं और राइट साइड में एटम्स के साइज जो है वो छोटे होते हैं। तो इन दैट केस यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, ये जो जगह है, ये जो ग्रुप है, इसमें सबसे एटम्स बड़े होते हैं। सो दे हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इन अ पीरियड्स, यू नो, यू जस्ट डिस्कस्ड इन अ पीरियड्स इन द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे जब हम बहुत यू नो ऑन द वेरी राइट साइड पे आ जाते हैं तो फिर हैलोजेंस केम्स एंड दे आर द वेरी स्मॉल एटम्स बिकॉज एटॉमिक साइज का ट्रेंड जो है इट्स बीइंग यू नो डिक्रीजिंग। तो छोटे एटम्स होते हैं ये। तो फिर ये एक बड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है कि बड़े एटम्स जो हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड जो छोटे एटम्स हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जिस पोटेशियम इज देयर एंड लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन। सो क्लोरीन इज देयर, राइट। ओके, सो दैट्स क्लोरीन एंड क्लोरीन जो है इसमें यू कैन से दैट के 17th एटॉमिक नंबर है प्रोडक्ट टेबल का, और ये पोटेशियम जो है ये आई थिंक सो 19th नंबर पे आता है। So if I just really think it contains 19 electrons, it contain 17 electrons, and it contains 3 shells, right? It is in the 3rd period and it is in the 4th period. तो definitely 4th period means कि जो पोटाशियम है उसके 4 shells होंगे और जो क्लोरीन है उसके 3 shells होंगे, right? The first shell contain the 2 electrons, then 8, and then 1, right? That's the configuration of potassium. Look at that, 2, 8, 8, 1, right? K, L, M, N. These are the number of shells जिसके अंदर ये electrons lie करते हैं। और क्लोरीन को अगर दूसरी तरफ देखें तो क्लोरीन also a kind of atom which contain 3 shells at least. So that's the shell number 2. Let's say that shell 1, 2 electrons, shell 2, right, 8 electrons, shell 3, 7 electrons. So K, L, M, the shell numbers, and 2 electrons in K shell and 8 electrons in the L shell and 7 electrons in the M shell. So if we just think about these two guys, these two elements, तो you know that इसको ऑक्टेट पूरा करना है and somehow ये भी 90th नंबर पे है, तो ये आर्गोन को दोनों फॉलो करेंगे, राइट। दे आर्गोन को फॉलो करेंगे। आर्गोन क्या है? आर्गोन कंटेन K, L, M shells and K contain 2 electrons, L contain 8 for argon and M also contain 8. So outermost shell जो M है argon का उसमें 8 electrons हैं and that literally means that कि ये एक noble gas है, क्योंकि किसी भी atom के outer shell में जब 8 electrons नजर आ जाते हैं तो it literally means कि वो एक noble gas है। That belong to the group number 18 of the periodic table. अगर हम इसको देखें तो क्लोरीन भी इसको फॉलो करना चाहता है और पोटेशियम भी इसको फॉलो करना चाहता है। तो फिर हम आयनिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। लेविस ने आयनिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया कि पोटेशियम के पास एक शेल एक्स्ट्रा है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालना भी आसान है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ईजी है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा n से, राइट। ये n में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ m में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है क्लोरीन के पास, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा इनटू द m ऑफ द क्लोरीन। सो क्लोरीन कंटेन 8 नाउ, और ये आर्गन की तरह लग रहा है आपको, राइट। एंड लुक एट दैट, ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा पोटाशियम में से, तो इट ऑल्सो समहाउ विल कंटेन द कन्फिग्रेशन ऑफ अ नोबल गैस, और ये भी नोबल गैस की तरह कन्फिग्रेशन जो है वो फॉलो करेगा। इसके भी 3 शेल्स हो गए और ये भी नोबल गैस आर्गन की तरह हो गया। सो इन स्टार्टिंग ऑफ माई चैप्टर आई जस्ट टोल्ड यू दैट व्हाई डू एटम मेक्स अ बॉन्ड, जस्ट टू गेट स्टेबलाइज। सो इन दिस केस पोटाशियम इज मोर स्टेबलाइज्ड, and in this case chlorine is more stabilized, right? So that's the Curie, right? That's the Curie I'm talking about here. So इसी तरह से बहुत से bonds हैं जो बनते हैं just because of noble gases कि noble gases को follow करने के लिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब बॉन्डिंग आप खुद भी बना सकते हैं, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। जैसे अभी हमने एक सॉल्ट बनाया है पोटाशियम क्लोराइड, और आई टोल्ड यू दैट पोटाशियम के कितने शेल्स थे? 4 शेल्स थे,
और उसके शेल्स कितने हो गए? 3 शेल्स हो गए, बिकॉज एक शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन चला गया था। और क्लोरीन के जो थे ही वो क्लोरीन वाज अ स्मॉलर एटम आई थिंक इन द बिगनिंग, क्लोरीन वाज अ स्मॉलर एटम, लेकिन जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया पोटाशियम से, पोटाशियम बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लोरीन बिकम नेगेटिवली चार्ज। और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हो गए तो इसमें क्या हुआ कि इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाती है। जैसे मकनातीस टूटता है तो नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इन द सेम केस पोटाशियम और क्लोरीन में भी अब क्या हो गया है, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस, राइट। और चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और बड़े एटम और छोटे एटम में अट्रैक्शन हो रही है, राइट। सो द पोटाशियम इज अट्रैक्टिंग क्लोराइड आयन, राइट, एंड दैट्स हाउ द सोडियम the potassium chloride is salt is in existence। आपको ये ज़मीन पे मिलता है। So if you just think more about it, let's talk about calcium। Calcium can lose 2 electrons, you must remember this। periodic table का दूसरे ग्रुप से कैल्शियम का ताल्लुक है अल्कलाइन अर्थ मेटल से, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। So look at that, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं और मैंने इस इक्वेशन को ऐसे छोड़ा है। So that's in oxidized form now। और ये देखें जो कैल्शियम है उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको पता है कि नोबल गैस को फॉलो इसने आर्गन को करना है, क्योंकि 20 नंबर पे तो कोई नोबल गैस नहीं है, 18 नंबर पे नोबल गैस है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए डेफिनेटली इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा। इस तरह अगर हम एक और केस में देखें, एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम 13th नंबर पे है प्रोडक्ट टेबल में। तो 13th नंबर किसको फॉलो करेगा, 10 नंबर को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि 10 नियरर है एज कम्पेयर टू 18। लुक एट दैट, अगर हमारे पास 13 नंबर है, ऊपर इसके 18 आता है, नीचे इसके 10 आता है, इसको नज़दीक कौन सा नंबर रहेगा? तो आई रियली विश आप ये कहेंगे कि ये 10 रहेगा, क्योंकि लॉजिकली 10 ही रहता है। सो 10 जो है वो नियॉन जो है, एल्यूमिनियम जो है वो नियॉन को फॉलो कर लेगा रादर कि वो आर्गन को फॉलो करे, बिकॉज आर्गन को फॉलो करने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन अटेन करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे। और एल्यूमिनियम एक मेटल है और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो बजाय कि वो गेन करे, जो कि उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और नियॉन को फॉलो करेगा। लिहाजा एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? एल्यूमिनियम पहले आयोनाइजेशन एनर्जी 1 करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 मीन्स के पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, फिर दूसरा निकालेगा, फिर तीसरा निकालेगा, और इस तरीके से वो 3 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल देगा। और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पे उसके 3 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ शो करेंगे। और अब इसकी एटॉमिक नंबर तो सेम रहा है, 13 रहा है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए हैं। तो इसने भी नोबल गैस को फॉलो कर लिया है, एंड दैट इज हाउ इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। और इसके अलावा अगर हम देखें ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन जो है वो 16th नंबर पे है पीरियोडिक टेबल में। अब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, इस पर 16 इलेक्ट्रॉन है। ये यू कैन से दैट कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो आपने एरो के टेल की साइड पे इलेक्ट्रॉन को लिखना है, और ये चार्ज हो जाएगा नेगेटिवली। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो एटम नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। और इस तरीके से अब इसने क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करके इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। और आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में होते हैं। सो उसके अलावा हम एक और एग्जांपल कोड कर सकते हैं जो आपकी बुक से रेलेवेंट है। लेट्स टॉक अबाउट सल्फर, राइट। सल्फर इज द कैन यू गेस एटॉमिक नंबर? Okay, let me guess it. Yes, sulfur is the 16th element of the periodic table, right? And 16th element of the periodic table means के पास 16 electrons हैं, and 16 electrons हैं। ये ऊपर बोंगी लगी है थोड़ी सी, ये 8 electrons होते हैं ऑक्सीजन के पास। और जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन अटेन कर कितने इलेक्ट्रॉन्स कर लेता है? 10 इलेक्ट्रॉन्स कर लेता है, और 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो नियॉन में होते हैं। सो अब सल्फर की तरफ आ जाते हैं। सल्फर जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यू कैन से दैट कि ये अब कितने अटेन करेगा? डेफिनेटली आर्गन को फॉलो करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करेगा, और ये बन जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स वाला एटम, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? -2। सो दैट्स हाउ sulfur will gain 2 electrons and becomes 18 electron element, 18 electron atom। और इस तरीके से जो है you can say that सल्फर भी अपने आप को क्या कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता है क्या होता है? रिड्यूस कर रहा है अपने आप को, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब एंटर होंगे सल्फर में तो वो अब नेगेटिवली 2 चार्ज हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, अब सल्फर जो है वो क्या है? नेगेटिवली 2 चार्ज है, राइट।
और यू कैन से दैट कि जो कैल्शियम है, राइट, कैल्शियम वो क्या है, पॉजिटिवली 2 चार्ज है और इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड होगा, आयन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फाइड। अभी हमने बात की थी क्लोरीन की, और कैल्शियम भी बॉन्ड बना सकता है। कैल्शियम +2 चार्ज है, क्लोरीन के 2 एटम्स पर -2 चार्ज होगा, क्योंकि एक एटम तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और इस तरीके से 2 यू कैन से दैट के एटम्स मिलकर क्या बना देंगे, कैल्शियम क्लोराइड, दैट्स अनदर सॉल्ट, एंड दैट इज हाउ द आयनिक बॉन्ड टेक्स प्लेस ओवर हियर एज वेल, क्योंकि कैल्शियम लूज करेगा, क्लोरीन जो है वो गेन करेगा। सो दैट्स द क्यूरी अबाउट आयनिक बॉन्डिंग, कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, जब कभी भी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन में आयनिक बॉन्ड का नाम लिया जाता है। और इसमें ये भी थोड़ी सी चीज़ मैं ऐड करता चलता हूँ यहाँ पे, कि जो सोडियम और क्लोराइन है, लेट्स से सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में है, लेट्स से हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में है, लेट्स से पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्म में है, लेट्स से कैल्शियम सल्फाइड की फॉर्म में है, ये जितने भी आपको मैं सॉल्ट्स बता रहा हूँ, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो 1.7 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। याद रखिएगा, अगर 1.7 से किसी भी 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से बढ़ जाता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। ये भी एक चीज़ नोटिस में रखनी है आपने। सो दैट्स द क्वेश्चन। बोर्ड एग्जामिनेशन में एज सच इसको एमसीक्यूज में ज़्यादातर पूछा जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता है एग्जामिनर, बट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये एज अ होल फेवरेट क्वेश्चन नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसको इस तरीके से स्टडी करें और तैयार करें कि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाए और तैयार हो जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर बॉन्डिंग विच इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग, राइट? Okay, let's talk about covalent.